Hello everyone, feel the joy of learning physics with Hemant sir. Today I will discuss class 11th, chapter 2, units and measurement, and topic is combination of error. Or in combination of error, today I will discuss error in product of two quantities. तो आपको मालूम है कि एरर क्या होती है? एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन true value and measured value. We can write measured value is equal to true value plus minus error. Because error may be positive, error may be negative. That is why we are writing measured value is equal to true value plus minus error. Measured value is what? Value which you will measure. Any performer is performing an experiment, and if we measure any value, that value is known as measured value. And the value which is written in book, that value is known as true value or real value or standard value. So here error is the difference between true value and measured value. So we can write measured value is equal to true value plus minus error. If A and B are two same physical quantities or different physical quantities like mass, time, length, volume, area, then we can write in this way: measured value of A may be any physical quantity. We can write true value of A plus minus error in A. We can write mathematically A is equal to A plus minus error in A. This is known as delta. Delta represent change or the difference or error. So A is equal to A plus minus delta A. Similarly, we can write measured value of B. It is equal to B plus minus delta B. Similarly, final result Z. So measured value of Z is equal to true value of Z plus minus error in Z. Z represent final result and Z is equal to product of A and B. This Z may be like if I am calculating area, then in this case Z may be area. And what about A? A may be length, B may be breadth. So here Z is equal to AB, or here it means area is equal to length multiplied by breadth. If I am interested to calculate power, so here power is equal to current multiplied by voltage. So this power is what? Z. Current become area or volume and potential become B. So we will derive the formula for error in the product of two quantities. Substitute the value of Z. So Z plus minus delta Z equal to A. This is measured value of A. So we can write true value of A plus minus error in A. Similarly, we can write B plus minus delta B. Now multiply A multiply with B, so we can write AB, A multiply by with plus minus delta AB, so we can write plus minus A delta B. Now plus minus delta A multiply by B, so we can write plus minus B delta A. Then plus minus delta A multiply by with delta A multiply with plus minus delta B. Now what is AB? A is a true value
B is a true value, and you know here AB is related as Z, so we can write true value of Z. And in left hand side, Z plus minus delta Z, this Z is a true value, this is error in Z, plus minus A delta B plus minus B delta A. Now we can neglect this. Why we can neglect? Because this quantity is very, very small. Like if I multiply 0.2 to 0.2, now see 0.04, this quantity become very, very small. It means if we multiply very small quantities, then the final result become again very, very small. So in comparison to other values, these values are less, so we can neglect. So here we will neglect. So we are not writing here. This Z is cancelled with Z because this is true value of Z. This is also true value of Z. So we will cancel. Now what we will do? We will divide both the sides by Z. So we can write plus minus delta Z divided by Z equal to A, that is plus minus A delta B divided by Z plus minus B delta A divided by Z. Now you know what is Z? Z is equal to AB. So we can substitute the value here. We can write plus minus delta Z upon Z equal to plus minus A delta B. Now we will substitute the value of Z because Z is equal to AB. So we will write plus minus A delta B divided by AB plus minus B delta A divided by AB. Now we can cancel. This A is cancelled with A, this B is cancelled with B, and we can write the maximum permissible error. So we can calculate maximum permissible error, and it will be what? Only positive value. Delta Z upon Z is equal to delta A upon A plus delta B upon B. We can calculate percentage error also. So how we can calculate percentage error? We will multiply both the side by 100. So we can write in this way: delta Z divided by Z multiply by 100% is equal to delta A upon A plus delta B upon B multiply 100%. In this way we can calculate. Now if you are interested to find out the final result with error limit, so we can write Z is equal to, means measured value of Z is equal to true value of Z. How we will calculate true value of Z? We will calculate true value of Z by multiplying true value of A and true value of B. Why we are multiplying? Because here we are taking the case of product. So that is why we will find the true value of Z by multiplying A and B. Plus minus delta Z. From where we will calculate delta Z? We will calculate delta Z by this formula. So in this way, final result we can obtain by Z is equal to Z plus minus delta Z. Now it will be more clear when we will solve numerical. The length and breadth of a rectangular field are measured as L is equal to 250 plus minus 5 centimeter. This L is the measured value of L. This is true value of length. और ये हो गई आपकी एरर इन लेंथ. एंड B मीन्स ब्रेड्थ इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर. B measured value of B which is equal to true value of B plus minus error in B. B मतलब breadth. Find the area of the field within error limit. We have to calculate area. और आपको मालूम है एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे?
एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो यहां जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ और ब्रेड्थ वो कैसे रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड एज प्रोडक्ट। हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया है ब्रेड्थ से। अच्छा, अब इफ देयर वर नो एरर, मतलब 5 सेंटीमीटर भी नहीं है ना 4 सेंटीमीटर है, केवल ये होता है लेंथ इज इक्वल टू 250 और बी ब्रेड्थ इज इक्वल टू 150। तो हम क्या करते हैं? वी सिंपली मल्टीप्लाई लेंथ विथ ब्रेड्थ। क्या होता? 250 मल्टीप्लाई बाई 150। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। ये आ गया 0 0 5, ये आ गया 37500 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरर भी प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? ये तो आ गई ट्रू वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ट्रू वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। अब एरर कैलकुलेट करना है तो आपको मालूम है इन केस ऑफ प्रोडक्ट वी कैलकुलेट एरर बाय दिस फॉर्मूला, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, यहां पे लेंथ है तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल 5, तो आई विल राइट 5 डिवाइडेड बाई लेंथ 250 प्लस अब डेल्टा बी है आपका 4 डिवाइडेड बाई 150। अब क्या करेंगे? यू विल टेक एलसीएम और इसका एलसीएम आया 750 डिवाइडेड बाई 250 कितने बार गया? 3 टाइम, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 15। 750 डिवाइडेड बाई 150 कितने बार गया? 5 टाइम गया, तो ये हो गया 20। यहाँ पर आ गया आपका 35 डिवाइडेड बाई 750। डिवाइड करके देखें, इसको डिवाइड किया 5 से 7 टाइम, इसको भी डिवाइड किया 5 से, ये कितने बार गया? 150। ये आ गया 7 डिवाइडेड बाई 150। तो डेल्टा ए अपॉन ए is equal to 7 upon 150. Now we will calculate delta A. तो delta A is equal to 7 upon 150 multiply by A. 7 upon 150 multiply by, what is A? A is 37,500. So we can write 37500. सॉल्व किया इसको तो सॉल्व करने पर जाएगा 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी आवर फाइनल एरिया? और फाइनल एरिया ए विद इन एरर लिमिट विल बी 37500। इट मीन्स ट्रू वैल्यू ऑफ एरर और प्लस माइनस 1750. दिस इज द आंसर, centimeter square. This is the answer. We can write area in terms of percentage error also. Actually this is not asked in the question, but we can calculate delta A upon A multiply by 100% equal to 7 upon 150 multiply by 100%, और ये आंसर आएगा 4.6%. Now we can write final answer in terms of percentage error also. तो area A is equal to 37500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 4.6%. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज अक्रॉस अ लैम्प इज V is equal to 6.0 plus minus 0.1 volt and the current passing through it is I is equal to 4.0 plus minus 0.2 ampere. Find the power consumed within error limit. आपको मालूम है पावर इक्वल टू यानी P इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज. तो जो पावर है वो करंट और वोल्टेज से कैसे रिलेटेड है?
करंट एंड वोल्टेज का प्रोडक्ट वो किसके बराबर है, पावर के बराबर है। अब अगर एरर नहीं की होती तो क्या होता, वी सिंपली मल्टीप्लाई 6 विथ 4 एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट पावर। लेकिन अब क्या हुआ, अब वी हैव कमिटेड एरर ऑल्सो। क्यों, कौन सी एरर, क्योंकि वोल्टेज में एरर है 0.1 की और करंट में एरर है 0.2 की, तो वी हैव टू यूज अ डिफरेंट फार्मूला। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू ऑफ पावर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, 4.0 मीन्स 4, वोल्टेज 6, ये आ गया आपका 24 और ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट। नाउ कैसे रिलेटेड है ये एरर, डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा V अपॉन V। हमने पहले जो फार्मूला डिराइव किया था वो फार्मूला कैसा था, Z इज इक्वल टू AB, A और B प्रोडक्ट में है, तो हमने फार्मूला लिखा था डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो सिमिलरली हमने यहाँ लिखा डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा V अपॉन V। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, डेल्टा I क्या है, डेल्टा I है 0.2, I कितना है 4 प्लस वोल्टेज 0.1 और ऐसा ही ट्रू वैल्यू इज 6। एलसीएम लिया, कितना होगा एलसीएम, एलसीएम है 12, 4 है, 12 को डिवाइड किया 4 से, 3 टाइम गया तो वी कैन राइट 0.6 प्लस इसको डिवाइड किया कितना आया 0.2, तो ये आ गया आपका 0.8 डिवाइडेड बाई 12। आगे सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाया तो ये हो गया 120 और सॉल्व करेंगे इसको तो कितने बार जाएगा ये गया 1 और ये हो गया 5, 1/15। अब वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा P, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा P, डेल्टा P वी विल कैलकुलेट, डेल्टा P इज इक्वल टू 1/15 मल्टीप्लाई बाई 1/15 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर किस में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए वॉट में, है ना। अब डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किया 5 टाइम, 3 से डिवाइड किया 8, तो ये आ गया 8/5 और आगे सॉल्व करें 1.6 वॉट। नाउ यू कैन राइट पावर विद इन एरर लिमिट, P इज इक्वल टू P प्लस माइनस डेल्टा P। दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ P विच इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ P प्लस माइनस एरर इन P। P कितना आया, P आया 24, तो लिखा 24 प्लस माइनस डेल्टा P 1.6 और यूनिट वॉट, ये आ गया पावर विद इन एरर लिमिट। क्वेश्चन में नहीं लिखा है बट वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज एरर ऑल्सो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई बाई 100% इक्वल टू 1/15 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 15 और आगे सॉल्व करें, 5 से डिवाइड किया 3 टाइम, 5 से डिवाइड किया 20/3 कितना आएगा ये, दिस विल कम 6.67 और परसेंटेज। वी कैन राइट पावर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑल्सो, तो वी विल राइट 24 वॉट प्लस माइनस 6.67%। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ of a field are 22.4 centimeter and 15.8 centimeter respectively and have been measured to an accuracy of 0.2 centimeter. Find the percentage error in the area of the field. क्या क्या गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। दिस इज व्हाट 22.4 एंड 15.8 सेंटीमीटर, ये मेजर करा, ठीक है ना, और कितनी एक्यूरेसी से मेजर किया 0.2 सेंटीमीटर, मतलब एरर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुई तो 0.2 सेंटीमीटर तक की, ठीक। क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द फील्ड। कैसे कैलकुलेट करेंगे,
एरिया A is equal to length multiplied by breadth. We know this formula. Delta A upon A is equal to delta L upon L plus delta B upon B. मल्टीप्लाई किया किससे? 100% से. क्यों? परसेंटेज एरर निकालनी है, इसलिए डेल्टा L अपॉन L मल्टीप्लाई बाई 100% प्लस डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई बाई 100%. लेंथ और ब्रेड्थ कितनी एक्यूरेसी से पता करना है? 0.2. तो एरर कितनी हो सकती है? 0.2 सेंटीमीटर. और मेजर कितना है? 22.4. ये हमारी हो गई ट्रू वैल्यू. देन प्लस मल्टीप्लाई कर, अच्छा बाद में कर लेंगे, इसको किया 100% लिख दिया, प्लस आगे डेल्टा बी अपॉन बी. तो डेल्टा बी अपॉन बी मीन्स 0.2 डिवाइडेड बाई ब्रेड कितनी है? 15.8 इंटू 100%. सॉल्व करेंगे आगे, डेसिमल हटाया और मल्टीप्लाई करेंगे. 100 का मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो गया 20, है ना. एक जीरो और लगा दो, है ना, नीचे डेसिमल से डेसिमल हटा लेंगे, तो ये हो गया 224% प्लस फिर यहाँ लिखा, ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया और 100 का मल्टीप्लिकेशन 200 डिवाइडेड बाई 158 और परसेंट. इसको आगे और सॉल्व किया, कितना आएगा? 200 डिवाइडेड बाई 224, ये लगभग आएगा 0.89%. और 200 डिवाइड किया बाई 158, कितना आएगा? ये आएगा लगभग 1.27%. इसको आगे और सॉल्व किया, यहीं आगे लिख लेते हैं, ऐड करें इनको, कितना आएगा ऐड करने पर? इट विल कम 2.16%. तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ द फील्ड. नेक्स्ट डेरिवेशन है एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज. तो जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिखेंगे. मेजर्ड वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ A प्लस माइनस एरर इन A. measured value of A is equal to true value of A plus minus error in A. Different physical quantity B, B plus minus delta B, Z final result plus minus delta Z. Now जो Z है वो A और B से कैसे रिलेटेड है? डिवीजन में. तो Z is equal to A upon B. एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. Z की जगह रो, A की जगह M और B की जगह V. तो M मास, V वॉल्यूम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देखो वेलोसिटी भी कैसे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिवीजन का केस है. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं Z की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं कि फाइनल वैल्यू हम निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एरर निकालने के लिए. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Z, तो ये जाएगा ट्रू वैल्यू ऑफ Z प्लस माइनस एरर इन Z. ट्रू वैल्यू ऑफ A, ट्रू वैल्यू ऑफ A प्लस माइनस एरर इन A डिवाइडेड बाई B प्लस माइनस डेल्टा B. अब Z को कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z. ये Z जो है ना ये सिंगल क्वांटिटी है, इसको कहते हैं एरर इन Z. डेल्टा A भी सिंगल है, एरर इन A. ऐसा मत करना कि Z को कॉमन लिया तो यहाँ से Z को बाहर निकाल लिया, ऐसा नहीं होता. तो क्या किया? डेल्टा Z डिवाइडेड बाई Z. सिमिलरली A 1 प्लस माइनस, यहाँ पे A था तो A बाहर आ गया तो बचा 1. यहाँ पे डेल्टा A है तो डेल्टा A डिवाइडेड बाई A. फिर B 1 प्लस माइनस डेल्टा B डिवाइडेड बाई B. अब A क्या है? A इज अ ट्रू वैल्यू, B इज अ ट्रू वैल्यू. तो A डिवाइडेड बाई B, तो यह जाएगा ट्रू वैल्यू ऑफ Z. 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A. और ये कहाँ है? ये डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले गए. क्या होगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B और माइनस 1.
1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब देखो ये जेड से जेड क्या हुआ, कैंसिल हो गया। बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, तो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, वो क्या है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 1। 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ये -1 का मल्टीप्लिकेशन यहां पे किया, क्योंकि ये 1 प्लस एन एक्स, तो n का मल्टीप्लिकेशन होता है x के साथ, तो यहां -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब मल्टीप्लाई यहां किया, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b अपॉन b। अब डेल्टा a अपॉन a वेरी स्मॉल, डेल्टा b अपॉन b very small, or when we multiply very small quantities, then final result become again very small, so we will neglect this term। 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व किया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल एरर, क्या होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो लिखा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा a अपॉन a पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा b अपॉन b, ये आ गया। We can write final result, z is equal to z plus minus delta z। If I am interested to write final result in terms of percentage error, so I will write delta z upon z multiply by 100% equal to delta a upon a multiply by 100% plus delta b upon b multiply by 100%। अब ये डेरिवेशन और अच्छा कब लगेगा, समझ में कब आएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R। तो आपको ओम्स लॉ मालूम है, क्या होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस I, करंट एंड रेजिस्टेंस R। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, परसेंटेज एरर इन R। तो कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब ये कैसे रिलेटेड है, V इज डिवाइडेड बाई I, तो वी विल राइट डेल्टा R अपॉन R is equal to delta V upon V plus delta I upon I। मल्टीप्लाई कर दिया 100% दोनों तरफ, ये हो गया 100%, यहाँ भी हो गया डेल्टा V अपॉन V 100%, और यहाँ भी कर लेते हैं डेल्टा I अपॉन I मल्टीप्लाई बाई 100%। सॉल्व करते हैं, डेल्टा V क्या है, डेल्टा V है 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100% प्लस करंट कितना है 0.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100%। आगे सॉल्व करें, ये 100 कैंसिल, तो ये हो गया 5%, यहाँ से एक ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस
2%, तो नेट कितने परसेंट की एरर हुई? 7% एरर इन रेजिस्टेंस। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, हमको निकालने की जरूरत नहीं है कितने परसेंटेज एरर है, केवल क्या करना है, लिखा है इफ परसेंटेज एरर इन V इज 5%, तो इसकी जगह हमको डायरेक्ट वैल्यू कितनी रखनी है? 5%। और फिर लिखा है इन करंट इज 2%, तो ये हम इसकी वैल्यू रख देंगे 2%। टोटल कितना हो गया? 5% प्लस 2% इज 7%। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ मास एंड वॉल्यूम of a body are 2.00 gram and 5.0 centimeter cube respectively with possible errors of 0.01 gram and 0.1 centimeter cube. What would be the percentage error in density? Given है कि this is the value 2.00 ग्राम, ये हो गई इसकी ट्रू वैल्यू, 5.0 ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, और कितनी एरर पॉसिबल है? पॉसिबल एरर वो हो सकती है मास में 0.01 ग्राम की और 0.1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है वॉल्यूम की। क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? फॉर्मूला फॉर डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कैसे रिलेटेड है मास और वॉल्यूम? डिवीजन से। तो हम फार्मूला क्या कैलकुलेट करेंगे? हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मास की वैल्यू क्या होगी? देखो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम कितना हो गया? 0.01, तो हमने लिखा 0.01 डिवाइडेड बाई मास कितना है? मास है 2.00 प्लस अब वॉल्यूम में एरर 0.1 और ट्रू वैल्यू ऑफ, ये हो गया 5.0 ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। आगे और सॉल्व करते हैं। डेसिमल हटाया यहाँ से तो हो जाएगा 1/200। यहाँ से भी हटाया, डेसिमल हटाया, यहाँ से भी डेसिमल हटाया, कितना हो गया? 1/50। फिर आगे चलते हैं, एलसीएम लिया 200, यह हो गया 1 प्लस 200 को डिवाइड किया 50 से, यह गया 4 टाइम, वैल्यू आ गई 5/200। क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाई बाई 100% इक्वल टू 5/200 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये 100 ये ज़ीरो कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2.5%। अब परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ s is equal to 16.0 plus minus 0.1 meter in a time t equal to 4.0 plus minus 0.2 second. Calculate its speed with error limits. और इसी में दूसरा क्वेश्चन है what is the percentage error in speed? फॉर्मूला मालूम है आपको? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले कैलकुलेट क्या करें? पहले कैलकुलेट करें स्पीड, किसमें? ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड, और फिर कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वी, और फिर कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज एरर। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू है 16। देखो यहां पर ट्रू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस 16, ट्रू ये लिखा 16.0 कर देता हूं मैं, और टाइम कितना है? 4.0। कितना आ गया? दिस इज 4.0 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे रिलेटेड है? डिवीजन में। तो वी कैन राइट दिस फार्मूला डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस
डेल्टा टी अपॉन टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखें, रख के यहीं भी देखते हैं। डेल्टा एस अपॉन एस क्या है? डेल्टा एस अपॉन एस, डेल्टा एस हो गया आपका 0.1, एस 16 प्लस डेल्टा टी 0.2, टी 4.0। इसको आगे सॉल्व करें, क्या होगा? ये डेसिमल चाहो तो हटाओ, ये हो गया 1 अपॉन 160 प्लस यहाँ से भी डेसिमल हटाया, दिस इज 2 अपॉन 40। इसको आगे सॉल्व करूँगा मैं। एलसीएम कितना है? एलसीएम इज 160। ये हो गया 1 प्लस 160 को डिवाइड करो 40 से, कितने बार गया? 4। ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8, और ये वैल्यू आ गई आपकी 9 अपॉन 160। अब कैलकुलेट क्या करना है हमको? कैलकुलेट करना है डेल्टा वी। तो हमने किया डेल्टा वी, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा वी इक्वल टू, ये वी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो आई विल राइट 9 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाई वी। और हमारी v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है 4, तो आई विल राइट 9 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाई 4। ये हो गया आपका 36 डिवाइडेड बाई 160। ठीक, अब मैं यूज करूंगा मैजिक मैथमेटिक्स। आंसर 0.225 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया डेल्टा वी। तो व्हाट विल बी योर स्पीड और विद इन एरर लिमिट? तो आपकी स्पीड होगी v इज इक्वल टू वी प्लस माइनस डेल्टा वी। v कितना है? गिवन है, ये आ गया, फाइंड आउट किया हमने 4.0, दिस इज 4.0 प्लस माइनस, और एरर कितनी आई? 0.225 यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? स्पीड विद एरर लिमिट्स। कोशिश ये करना चाहिए जब भी सॉल्व करें तो हम बॉक्स बना सकते हैं। ये बॉक्स बना दिया, यहाँ पर हमारा डेल्टा वी का आंसर आया, उसको भी हमने बॉक्स बनाया, और जो फाइनल वैल्यू है उसको भी बॉक्स में रख दिया, बॉक्स में रख दिया। ठीक, अब क्या कैलकुलेट करना है? अब कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन स्पीड। तो कैसे करेंगे? फार्मूला वापस फिर से लिखा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। और आपको मालूम है वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया करने के बाद क्या आया था हमारा फार्मूला? डेल्टा वी अपॉन वी आया था 9 अपॉन 160। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 9 अपॉन 160। अब मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज यहाँ भी किया, 9 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये हो गया 900 डिवाइडेड बाई 160%। अब मैंने यूज़ किया मैजिक मैथमेटिक और ये आंसर आया 5.625%। दिस इज व्हाट डेल्टा वी अपॉन वी। मैं इसको कंप्लीट कर दूं, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100%। तो दिस इज व्हाट परसेंटेज एरर इन स्पीड। सी आई कैन राइट दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑल्सो। तो कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 4.0, ये आ गया मीटर पर सेकेंड, और प्लस माइनस ये जो एरर लिखी थी मैंने, अब मैं इस एरर को लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, लिख दिया। चाहे तो राउंडिंग ऑफ द नंबर यूज करें, और ये जाएगा 4.0 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 5.6 और लिखा मैंने परसेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर आ गया। अब अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी एंड जनरल रूल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।